Hi guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Tahir and you are listening to the Brown Girl Rants in bracket comma Ramzan edition. We are almost done with the first ashra of Ramzan or literally पता नहीं लगा मतलब अच्छा for me it's been more that कि मुझे पता नहीं लगा cause on the fifth roza और ऑन द फोर्थ रोज़ा जो जुम्मे को कौन सा रोज़ा था मेरे ख्याल से फिफ्थ ही था ऑन फिफ्थ रोज़ा नाइट मतलब कि सिक्स्थ रोज़े की स्टार्ट से पहले आई गॉट माई पीरियड्स और ऑब्वियसली आई कुड नॉट फास्ट तो मैं सैटरडे से रोज़े नहीं रख पा रही विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आई एम ग्लैड कि आई गॉट टू fast for the first 4-5 days ताकि I could get into it, I could get into my routine. और पिछली बार ऐसा हुआ था कि I got them on the first रोज़ा तो I just felt really left out and everyone was like enjoying and talking about Ramzan and I was like, oh, I can't fast on the first days. But इस बार ये हुआ है कि I fasted for like the first 4 days जितने before ही और उसके बाद I got them और I knew it was coming और होनी को कोई बंदा टाल नहीं सकता लेकिन फिर भी I know कि it's for मतलब I said this on Twitter too I know it's for my ease and to make me comfortable लेकिन I am like oh कब ख़त्म होंगे because I just want to be back in the routine. Obviously I'm still going to Dora Quran लेकिन I cannot hold the hard copy of my Quran and this is like today's topic if you read the title so we'll discuss it later on और उसके बाद I can't go for तरावी I enjoy तरावी so much और अब आके मुझे ऐसा क्योंकि पहले जब था तो तब I was really busy और I was like getting into the routine तो मैं बहुत busy थी तो मैं सिर्फ 8 पढ़ रही थी लेकिन अब आके मुझे लग रहा था especially on weekend I was like oh I would have done 20 तरावी लेकिन वो हो नहीं पाया और now I just feel really lost and empty or I hope कि it won't take me long to get back to it. I don't know. I think there's just 2 more days to go and then I can join you all in the fasting and I'm like really missing out and I am not really happy about it. I just want to go back in it. I just want to go back in the routine I had really quick and I'm really excited for it. उसके अलावा गर्मी आ रही है ठीक है और I can't tell how hot it is outside cause I have not been outside इतने अरसे से मतलब last time I don't remember when I went out. I did went out once असर के time लेकिन that was like for the short time of period. आज भी मैं गई थी आलू लेने लेकिन that was not like much like I just went for to buy something to the nearest store. It was not like going for work or going for university or college. That's for that's difficult. I know, I understand. So I don't know how it is at 1 p.m. or 12 p.m. I'm sure it is getting hot and it is hot. मुझे घर में भी इतनी गर्मी लगती है तो I cannot imagine how it is outside. लेकिन I hope अभी भी मतलब बेहतर है. We have seen Ramzan in पीक गर्मी तो आई थिंक उससे तो बेहतर ही है तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अच्छे महीने में भी और स्प्रिंग में भी रमज़ान जो है वो गुजारने का मौका मिला है और आगे सर्दियों में भी आएंगे तो रियली इंशाल्लाह वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि वील विटनेस दैट एज वेल लेकिन yeah summer is coming and we cannot avoid we just can it's coming to us and we just cannot हम जो भी सोच लें आना है गर्मी लेकिन anyways उससे पहले हमारे पास पूरा रमज़ान है ईद we'll enjoy it और हम उसको अच्छे से गुजारेंगे तो that's what's happening. I have not posted बहुत अरसे से स्टोरी और because I was like oh I don't want to talk about anything दुनियावी I just want मैं जो भी लगाना चाहती हूँ अपनी स्टोरी पे स्पेशली मतलब मी टॉकिंग क्योंकि आई पोस्ट ऐसी स्टोरीज बहुत ज़्यादा आई वॉज नॉट इवन माई सिस्टर वॉज लाइक तुम इंस्टाग्राम अकाउंट का भी रोज़ा रख रहे हो तो आई ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम आपको स्टोरीज वगैरह पोस्ट कर दी लेकिन ऑनेस्टली आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू बी इन द रमज़ान स्पिरिट और आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनीथिंग दुनियावी क्योंकि वो हम ईद के बाद बहुत सी बातें कर सकते हैं. I have also paused literally the show I was watching or the book I was reading, the fictional book I was reading. तो इस वजह से मुझे लगता है कि since I have paused that और also I don't really watch anything. इस बार मैंने रमज़ान shows मैंने पिछली बार भी नहीं देखे रमज़ान shows.
इस बार भी मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता. एंड आई जस्ट थिंक कि नाउ द मोर आई ग्रो अप द मोर आई रियलाइज के आई थिंक कि मतलब कि कोई और एपिसोड में भी इस चीज़ के बारे में बात करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि, और मैंने पिछली एपिसोड में भी ये चीज़ बोली थी कि मतलब कि a lot of people like take Ramzan as a festive month, and I am not here to say कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, लेकिन for me the more I grow up the more I take Ramzan as a spiritual thing कि I am closer to Allah. तो I just want to be my best, मतलब कि be at my best in terms of religion, और मुझे जितनी नॉलेज मिल सकती है, जितना मैं ऐसे चीज़ों में जा सकती हूँ जैसे दौरा है, कुरान है, तरावी है, सॉरी ऐसी चीज़ों में जा सकती हूँ मैं, मतलब कि उस हिसाब से मैं करूँ. और शोज़ वगैरह तो बंदा बाद में भी देख लेता है, तो मुझे नहीं इस बार लगा कि वो मुझे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे शोज़ देखना चाहिए. मुझे कभी गुस्सा भी चढ़ता है कि वाई आर दे ऑन एयरिंग शोज़, और मतलब कि दे कैन डू सो मच, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इट्स डिफरेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन एंड आई एम नॉट इन प्लेस टू do that. लेकिन I personally मतलब कि obviously personally मुझे नहीं लगा इस बार कि I should watch something, and I'm really trying to just not consume what I was consuming regularly क्योंकि I just want this month to be special in terms of दीन नॉलेज और दीन और इबादत और वो सब कुछ. तो इस वजह से मैं स्टोरीज पोस्ट नहीं कर रही. अच्छा, विद अफ्तारी एंड सहरी, विद हाउस चोर्स, सब पहले मैं ये सारी बातें कर लेती हूँ, द अपडेट एंड ऑल, देन वील मूव टू द टॉपिक. विद अफ्तारी एंड सहरी आई थिंक आई एम गोइंग प्रिटी गुड, क्योंकि अभी तक बर्न आउट नहीं हुआ, लेकिन वी आर ऑन 8th रोज़ा. अभी अफ्तारी की है मैंने, 8th रोज़ा की ख़त्म करके फिर मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ. तो और 5th रोज़ा के बाद वैसे ही आई गॉट माई पीरियड्स, तो it's too early, I'm speaking too early, लेकिन I really think I got this time क्योंकि मेरे में इस टाइम हिम्मत है. maybe it's because I'm taking multivitamins, लेकिन I don't know, I feel energy. और मैंने कभी ज़िंदगी में सहरी उठ के नहीं बनाई, मैं बता रही हूँ. मैंने मतलब क्या बस वो मैं अफ्तारी बना दूँगी, सहरी नहीं. लेकिन इस बार I wake up, I make सहरी, it's not that hard to make सहरी. और इस बार I try to, मैं अफ्तारी भी बनाती हूँ और जो है मतलब कि है. तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर हिम्मत और बर्न आउट नहीं होगा, क्योंकि पिछले रमज़ान लास्ट अशरा में कह रही थी I don't wanna work तो आई होप के, लेकिन आई एम स्पीकिंग टू अर्ली, लेट्स जस्ट give like a week or 2 more, cause अभी तो obviously I'm on a period, so I'm not even fasting आजकल, और not even going for तरावी. तो इस वजह से मुझे लगता है कि, लेकिन वो तरावी इज़ लाइक अ प्लेजर टू मी, इट्स नॉट लाइक सम वर्क. उसकी वजह से ये होता है क्या स्केड्यूल टाइट हो जाता है, लेकिन दैट इज़ विद द वर्क, इट्स नॉट विद अफ्तारी और सहरी. लेकिन आई कैन स्लीप अर्ली नाउ क्योंकि आई गेट माई थिंग्स डन एंड आई स्लीप अर्ली. आई डोंट नो, वील सी, आई विल अपडेट यू गाइस नेक्स्ट वीक. लेकिन ये है, और अभी तक जो है मैं उस क्राइसिस में भी नहीं आई कि आज क्या बनाना है क्या बनाए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि अच्छा ये बना लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं. ऑल्सो माई मॉम कीप्स गिविंग आइडिया कि आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं. तो इस वजह से मुझे लगता है कि अभी तक वो क्राइसिस नहीं आए, और आई होप कि इस रमज़ान वो ना आए, बिकॉज आई डोंट वांट द रमज़ान टू बी अबाउट सहरी अफ्तारी, आज ये करना है ये करना है. आई जस्ट वांट इट टू बी मोर देन दैट, एंड आई वांट इट टू बी समथिंग, मतलब कि आई वांट इट टू बी अगेन month where I can get more closer to deen and do more इबादत, और ये सब कुछ है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि दुआ तो यही है कि इस बार वो वाले क्राइसिस ना आए, लेकिन इट्स गोइंग वेल. और अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे रहने का एक वो मज़े की चीज़ ये है, आई लिव इन अपार्टमेंट्स, राइट. तो यहाँ पे आई हैव नेवर सीन दैट, क्योंकि पिछले जब हम रहते थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ कल्चर नहीं था. लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि everyone shares, and मतलब स्पेशली विद नेबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि having a good neighbor is a blessing, and alhamdulillah we have really good neighbors. तो हम जो भी अफ्तारी में बनाए, we keep sharing it to each other, कि हमने पकौड़े बनाए, थोड़े से वहाँ दे दो, थोड़े से वहाँ, और whatever they make. तो इस वजह से it's like कि there's just मतलब कि जब भी रोज़ इतना कुछ आ जाता है अफ्तारी के लिए, and it's just so much fun in it. It's so enjoyable, and I love like giving and I love receiving. तो it's like really fun in Ramzan, क्योंकि it's मतलब कि there's not even been a single day, there might have been, लेकिन most of the days it's like कि आपको कोई ना कोई neighbor आपको कुछ भेज रहा होता है और आप किसी को कुछ भेज रहे होते हैं. It's just really fun and enjoyable and a good way to
कि आपका एक दूसरे से ताल्लुक़ भी रहे और मोहब्बत भी रहे. तो आई जस्ट रियली लव द थिंग ओवर हेयर कि यहाँ पे आप नेबर से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो. तो लव दैट. Okay, our topic for today is understanding Quran. Last episode we talked about how to concentrate on namaz. Namaz is like the first thing, it's like the first thing that is first on us that we have to perform day to day. There's a lot of things, like obviously being a Muslim you have to believe in oneness of Allah and the fact that Hazur Sallam is the last prophet and Quran, but these are the beliefs. Namaz is something you have to perform. It's first on us. Similarly with Roza and Hajj and Zakat, like namaz is something that we do daily. While we do pray और हमें लगता है कि वो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, we forget to concentrate on it. Sometimes, most of the times मेरे साथ ये होता था कि I am praying and I am doing my first ibadat, but at the same time I don't know what I'm saying or I am not concentrated enough on it, and that would make me feel कि ओ मेरी शायद नमाज कबूल ही नहीं हुई. जिसकी वजह से लास्ट एपिसोड में हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी जिसकी वजह से हम नमाज पे फोकस कर सकें ताकि वो नमाज हमारे लिए एक अच्छा फुलफिलिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सके और हमारा वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन हो सके. When we have this urge to know more about our religion, and especially we are in the month of Ramzan, or obviously we are, even though we are Muslim by birth, which alhamdulillah for that, कि Allah made us born in a Muslim family, फिर भी there's a lot of times when we question कि if someone asks us कि why are you following this religion, we need to say something to defend us and to defend our religion. And if we won't know enough knowledge, so the only answer we can give is that it's because I was born in this family. And we don't want that. And when we ask questions about that, okay, why do we believe in it? दूसरे रिलीजन में ऐसा क्या नहीं है जो हमारे रिलीजन में है और ये सब कुछ है, तब वी गेट दिस अर्ज टू नो मोर अबाउट आवर रिलीजन. आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर नोमान और आई रियली लाइक्ड इट. द टाइटल ऑफ दैट वीडियो वॉज के हाउ डू वी नो कि वी आर इन द राइट रिलीजन. के द पर्सन, द ऑडियंस में समवन आस्क के ऑब्वियसली वी आर born Muslim, लेकिन how would we know कि we are following the right religion? Because there's a lot of people who are born in another religion and they think that they're in the right religion. So for that he answered कि Allah have given you a book, ठीक है, which is Quran, और आप पहले उस चीज़ को पढ़ें और पूरा पढ़ें और दिल से पढ़ें. अगर आपको उस चीज़ की नहीं समझ आती तो आप बाकी रिलीजन में देखें, लेकिन कुरान इज सच अ फुलफिलिंग बुक कि जब आप उसको पढ़ते हैं, एंड आई टॉक अबाउट इट लेटर ऑन एज वेल, कि जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको वही किताब मुकम्मल लगती है और आप फिर उसी में रहते हैं. तो इस वजह से अगर आप अपनी रिलीजन को अगर आप अपने मज़हब को ढूंढना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं कि जिस मज़हब में मैं हूँ वो हकीकत है, तो आपको पहले जो उसमें आप मतलब कि जिस किताब पे आप यकीन रखते हैं, जिस पे आपको बिलीव है, जो आपने बचपन से पढ़ना सीखी है किसी दूसरी लैंग्वेज में, जिसकी आपको तिलावत आती है, उसका मतलब भी देखें कि मेरी ज़ुबान में इसका क्या मतलब है और मैं उसको उस लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकूं, ताकि आपको पता लगे कि वो आप इस बुक से कनेक्ट करते हैं कि नहीं. तो इस वजह से हमारा ये होता है कि हम कहते हैं कि ओ अच्छा हमें डिस्कवर करना है तो हम पहले दूसरे रिलीजन देखें और मतलब फिर हम अपना देखें, फिर देखें कि सब कुछ सही है. आई लाइक हिज थ्योरी कि पहले अपना देखो, पहले जो अपनी बुक है वो पढ़ो, क्लैरिटी नहीं मिली बाकी का भी देखो, और अगर चलो क्लैरिटी मिल भी गई है उसके बाद बाकी रिलीजन देखो, ताकि यू कैन कंपेयर कि क्या मतलब कि है. और एज वी हैव अ फेथ के बाकी जो किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो सारी जो हैं वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो प्रॉफिट्स थे उन पे उतरी हैं, तो हम बैठ के जो है वो इस चीज़ का कंपैरिजन कर सकें कि ओ क्या चीज़ है जो मिलती है, क्या चीज़ है जो लोगों ने चेंज कर दिया, वो सब कुछ है. लेकिन विद दैट बीइंग सेड, द पॉइंट बीइंग इज़ दैट के आप हमें पहले अपनी किताब को खोल कर उसको समझना चाहिए. और द अर्ज टू नो मोर अबाउट देयर रिलीजन
comes in you, and you should not be worried कि आपको कि ओ मुझे ऐसा feel नहीं होता, because that would be there. The more you will be closer to your religion, the more content you will watch about your religion, या आप जितने लोगों को सुनेंगे या जितना आप इस चीज़ पर सुनेंगे, even अगर आप जैसे रमज़ान में and you are in the spirit, आप नमाज ज़्यादा concentration से पढ़ रहे हो, आप दुआएं मांग रहे हो, आपको और इबादत करनी है, तो obviously you want to know more about your religion. जब आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप किसी की वीडियो देखते हो, तो उसमें बहुत से लोग कुरान को कोट करते हैं, और आप वो कभी कभी कोट पढ़ते हो तो आप कहते हो कि ओ आई वुड लव टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, या मुझे भी पढ़ना है ताकि मैं ये चीज़, मतलब कि आपको कोई चीज़ इतनी पसंद आती है तो यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट. मैंने पहले ये किया था, मुझे याद है, इवन तो मुझे पिछले 2 साल से आई थिंक कि आई हैड दिस अर्ज के मतलब आई हैड शुरू से, लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन आई फाइनली स्टॉप्ड स्टडीइंग, तो आई मतलब कि और आई वॉज लाइक कि नो, आई वॉन्ट टू रीड कुरान, आई वॉन्ट टू रीड कुरान लाइक यू रीड अ बुक. आई एन्जॉय रीडिंग सो मच, तो आई वॉज लाइक कि आई वॉन्ट टू रीड. लेकिन आई वॉज जस्ट, मुझे नहीं पता कि उस टाइम क्या था, वाई डिड नॉट आई स्टार्टेड रीडिंग इट. मैं देखना शुरू हो गई कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए कुरान की जिसमें अच्छी ट्रांसलेशन है, मैं कौन से ट्रांसलेटर में करूँ, ये करूँ वो करूँ. ऑनलाइन ये होता था कि आई वुड स्टार्ट एंड देन आई वुड स्टॉप, और पता नहीं क्या होता था, आई डोंट नो, मे बी इसी टाइम मेरे लिए बेहतर था, मुझे नहीं पता क्या था. लेकिन विद मी आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से. और ये हुआ कि पहले आई स्टार्टेड रीडिंग लाइक स्पिरिचुअल बुक्स के, किसी ऑथर की मैं बुक पढ़ लेती थी. आजकल भी मैं बुक पढ़ रही हूँ, सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव, और जो भी ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स होती थी जैसे 40 रूल्स ऑफ लव है, ये जैसे जो भी बुक है आई वुड रीड दैट. लेकिन मुझे कभी भी वो बुक पढ़ के वो फुलफिलमेंट नहीं होती थी, तो मुझे लगता था कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ बुक टू हिट मी लाइक दैट. बट आई डिड नॉट रियलाइज कि दैट बुक इज कुरान दैट आई नीड टू रीड फर्स्ट, और उसके बाद आई शुड, दैट इज सेंट बाय अल्लाह, और उसके बाद मैं जो इंसानों ने कुरान पढ़ के किताबें लिखी हैं फिर मैं वो किताबें पढूं. ठीक है, तो मेरा भी यही था कि आई वाज सीकिंग अदर बुक्स फॉर रिलीजियस लाइक स्पिरिचुअलिटी और मोर नॉलेज, व्हेन आई शुड हैव रेड द बुक दैट इज इन माय बिलीफ फर्स्ट. ओके, तो और दूसरी बात ये है कि जो इंसान बुक्स लिखते हैं ऑब्वियसली देयर आर फ्लॉज इन इट, और वो हर किसी का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन भी होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर, या जो उन्होंने बातें सीखी है या जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, हर किसी की इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होती है. और जब तक कि हम एक अच्छी हेल्दी इस चीज़ के बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर लड़ने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है कि ये मैं इसको मानती हूँ, इसको करती हूँ. और इवन विद यू नो देयर लोगों में इख्तलाफ हैं कि नहीं इस्लाम में ये चीज़ है, कोई कहते हैं नहीं ये चीज़ है, और इसकी वजह से इतने ज़्यादा सेक्ट्स भी बन गए और ये भी हो गया, और बंदा उस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाता है. इस वजह से भी ज़रूरी है कि पहले हम अपनी किताब देखें जो हर किसी के पास एक ही है. द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट कुरान इज दैट कि हर किसी का अलग अलग कुरान नहीं है, किसी मतलब किसी ने कोई चेंज नहीं किया, हर किसी सेक्ट का एक ही कुरान है, विच इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. एंड द थिंग रियली लाइक शेक्स यू, खज अल्लाह सेड के उन्होंने वो कुरान की हिफाजत करेंगे. और हम अदर होली बुक्स भी देखते हैं कि उसके इतने ज़्यादा वर्जन हैं और हर वर्जन में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हमारी बुक एक ही है. तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो और आप देखते हो कि वो आपका दोस्त इस सेक्ट का है तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, इवन विद मौलवी, कोई किसी मौलवी को फॉलो कर रहा है, कोई कह रहे नहीं इस मौलवी को नहीं, उसको नहीं सुनना. सबसे पहले आप अल्लाह की सुने कि अल्लाह ताला ने अपने किताब में क्या कहा है, उसके बाद आप किसी और को सुने और देखें कि वो आपको क्या लगता है और आपका पर्सनल इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि फॉर मी आई रियलाइज कि आई वांट टू रीड कुरान एंड आई वांट टू रीड इट लाइक अ बुक. आई वुड सी पीपल स्पेशली ऑन टिकटॉक मतलब कि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन इट, लेकिन इफ़ यू आर ऑन द रिलीजियस साइड ऑफ टिकटॉक देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड Muslim TikTokers that upload so much good content. आपको इतना मज़ा आता है, वो किसी सूरत के बारे में जो है, कभी किसी आयत के बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं, कभी कोई किसी थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी सुन्नत के बारे में कर रहा है, कभी कोई किसी अल्लाह के नाम के बारे में कर रहे हैं. तो TikTok इज़ अ वेरी नाइस ऐप, यू जस्ट नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ इट. अच्छा, तो अब मेरे साथ ये हुआ कि आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड मैंने ऐसे लोगों को सुनना शुरू हो गई जो जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी. और आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ उमर सुलेमान. स्पेशली मुझे लगता है कि मौलाना उमर सुलेमान, आई थिंक ही इज़ रियली गुड और मुझे उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है. एंड ही हैव हिज रमज़ान सीरीज़ और उसमें
this time they're doing, like what I मतलब कि why I exist or what why God made me, ऐसे करके कुछ करे, and every day he posts a video and it's really good and it's a nice self reflection. तो if you want मतलब to watch it. लेकिन तो फिर आई वॉज मतलब कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं उर्दू ट्रांसलेशन लूँ, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम समवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन ऑब्वियसली टू लैंग्वेजेस, बिकॉज ऑब्वियसली यू ग्रू अप इन वन लैंग्वेज बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इन स्कूल तो फिर आपको दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में सिखाए जाते हैं, एंड यू आर गिविंग योर एग्जाम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और आप घर पे उर्दू लैंग्वेज बोल रहे हो, और फिर जब आप बड़े होते हो तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली जो है वो स्विच हो जाता है. तो समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और यू स्टार्ट लाइक जब कभी कभी होता है आप बोल उर्दू रहे हो लेकिन आप इंग्लिश कंटेंट देख रहे हो या इंग्लिश किताबें पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू गेट कंफ्यूज. तो कभी कभी मुझे होता था कुछ तर्जमा मुझे इंग्लिश में समझ आता था, कुछ तर्जमा मुझे उर्दू में समझ आता था, समझ ही नहीं मुझे आ रही थी. तो आई वाज लाइक ओ आई वांट अ बुक दैट हैव बोथ ट्रांसलेशन. जो मुझे बुक चाहिए थी, जो मुझे जिस ऑथर की ट्रांसलेशन चाहिए थी वो हमेशा सोल्ड आउट हो जाती थी, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी. लेकिन देन लास्ट रमज़ान में ये हुआ कि आई गॉट इन्वाइटेड टू नॉट दौरा कुरान, आई गॉट इन्वाइटेड टू अ कुरान क्लास, और तो वो क्लास जो थी वो वीकली थी, और दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैव एवर हैपन टू मी. तो हम रमज़ान में हर सैटरडे को जाते थे एंड दे वुड टेल अस अ स्टोरी, और कुछ भी जो है हम किसी भी टॉपिक के बारे में वो डिस्कस करते थे. उसके बाद दे कॉन्टिन्यूड दैट क्लास रमज़ान के बाद भी, और उसके बाद ही होता रहता था. तो आई जस्ट डिवेलप्ड अ गुड फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु वाज डूइंग द कुरान क्लासेस. और उसके बाद she said कि she is really wanting to start दोहरा कुरान this Ramadan, and I was like कि I would really love that because I have never been to दोहरा कुरान. मैंने कुरान पढ़ा हुआ है लेकिन आधा मैंने तब पढ़ा था जब मेरे इस्लामियात या अरबिक में it was required to memorize the तर्जमा of this particular सूरत, क्योंकि मुझे उसके मार्क्स मिलने हैं. और इवन विद इस्लामियात और अरबिक मैंने तभी पढ़ा हुआ है जब वो मेरे सिलेबस में है. तो इस वजह से आई हैव नॉट रेड इट फॉर प्योर नॉलेज और प्योर क्यूरियोसिटी. तो इस वजह से, और मुझे शायद एक किक स्टार्ट चाहिए था, क्योंकि पिछले रमज़ान में आई स्टार्टेड डूइंग इट, लेकिन उसके 2-3 क्योंकि आई वाज डूइंग इट माई सेल्फ और मैं खुद ऑनलाइन करी थी, तो फिर आई स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग और जो भी हो गया. तो विद क्लास दिस थिंग इज़ रियली नाइस. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट तरावी एज वेल, कि आप उठ के तैयार होके कहीं जा रहे हो, सेम विद कुरान क्लास, सेम विद तरावी, और वहाँ पे और बहुत लोग हैं, तो यू गेट मोर मोटिवेशन, और इट्स जस्ट अ नाइस इन्वायरमेंट जहाँ पे आप जो है वो इबादत करते हो या फिर कुछ सुनते हो. तो शी सेड दैट एंड आई वाज लाइक ओके आई वुड रियली लव दैट. तो फिर आई आस्क्ड हर कि मुझे कौन सा कुरान लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तर्जुमे वाला कुरान नहीं है. तो शी रिकमेंडेड मी टू बाय द नोबल कुरान बाय, और उनकी ट्रांसलेशन जो है वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान ने की है, इंग्लिश ट्रांसलेशन. तो आई हैव इंग्लिश, आई गॉट इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला कुरान, एंड आई गॉट इट फ्रॉम दावा, एक साइट का नाम है. इफ़ यू वांट द लिंक आई वुड सेंड यू द लिंक, DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सेंड यू द लिंक. लेकिन सो आई गॉट दैट, और उसके बाद आई स्टार्टेड टू गो ऑन द दोहरा कुरान, और आजकल वो चल रहे हैं. इट्स बिन सो गुड, इट्स बिन सो अमेजिंग. मैं उनसे परसों फ़ोन पे बात कर रही थी और मैं उनको बता रही थी कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है, और इट्स जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग. और आई थिंक मतलब कि ऑब्वियसली आई एम रीडिंग कुरान फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं इस तरह समझ के भी पहली बार पढ़ रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आई मिस्ड आउट सो मच, और मैं पूरी ज़िंदगी कहाँ थी. लेकिन इट्स जस्ट सच अ गुड थिंग, एंड आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन हु इज़ लिसनिंग टू इट एंड हैव दिस अर्ज टू नो रिलीजन. आई वुड रियली 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 रिकमेंड यू टू फर्स्ट रीड कुरान, क्योंकि हम तिलावत तो कर लेते हैं, ऑब्वियसली कारी साहब आते हैं, हम पूरा कुरान हमने पढ़ा हुआ है, हमें अरबी पता है, लेकिन हमें तो उसका तर्जमा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि और मुझे मतलब कि जब आप तर्जमा पढ़ते हो ना, और फिर क्योंकि ऑब्वियसली तिलावत का अपना सवाब है, और जब मैं तरावी सुन रही होती हूँ तो ऑब्वियसली वो अरबी में तिलावत करते हैं, लेकिन आई जस्ट रियलाइज़ कि आई विश आई न्यू अरबिक, आई विश आई न्यू हाउ टू स्पीक अरबिक एज वेल, ताकि जब मैं तरावी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता हो, एंड दैट वुड मेक तरावी सच मतलब कि इट वुड टेक इट टू अनदर लेवल, कि मैं तिलावत सुन रही हूँ और आई नो के व्हाट इट मीन्स, कि अभी भी मैं रिस्पेक्ट में सुन रही हूँ, लेकिन मतलब कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डोंट नो व्हाट रियली मीन्स. और आई विश एंड आई थिंक द पर्सन हु नोज अरबी इज़ सो लाइक
I think it's so amazing and that person is so lucky कि आप जो पढ़ रहे हो, आप तिलावत कर रहे हो और आपको उस चीज़ का पता है. तो with us obviously we are doing, or I think I have this plan कि there's like at some point in my life I'm gonna take Arabic classes and I'm gonna try to know at least a little bit about Arabic ताकि मैं भी उस चीज़ से pleasure ले सकूं. लेकिन I think क्योंकि हम obviously तिलावत अपनी जगह और तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको translation पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपको लगता है जैसे मैं खुद से शायद नहीं कर सकती थी, अब जब मैं पढ़ रही हूँ obviously because we have to like finish the whole Quran in 30 days, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब कि हम हर आयत को उस तरह डिटेल में नहीं पढ़े. लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ तो आई एम लाइक ओ आई विल रीड इट माई सेल्फ आफ्टर रमज़ान, क्योंकि देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट मोर अपॉन. मैं उस चीज़ को पढ़ के शायद सोचना चाहती हूँ, तो मैं खुद से भी पढ़ना चाहती हूँ. तो वंस यू स्टार्ट इट तो आप जो है उस चीज़ में हो जाते हो, और फिर आप जो है मतलब कि यू गेट मोर इनटू इट बिकॉज यू गेट मोर क्यूरियस, और आप उस चीज़ को करते रहते हो. लेकिन फॉर अ किक स्टार्ट मे बी आपको किसी ऐसी महफिल और ऐसे इन्वायरमेंट और सराउंडिंग में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और वो भी उस चीज़ के बारे में इतने इंथ्यूजियास्टिक है और आपको कोई गाइड और लीड करने वाला है. तो इस वजह से सीक आउट, मुझे लगता है स्पेशली द सोसाइटी आई लिव इन, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दौरा कुरान है और लोग करते हैं कराते हैं. एंड आई बिलीव कि हर जगह है. यू जस्ट नीड टू लाइक गेट आउट एंड आस्क पीपल. मुझे लगता है कि आई वॉज रियली लकी, और बस अल्लाह ताला ने करना था कि पिछले रमज़ान जो है मतलब द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द कुरान एंड मतलब वो जो करती हैं वो खुद हमारे घर आई हमें दावत देने के लिए कि मैं ऐसे कुरान क्लास कर रही हूँ, तो मतलब कि यू मतलब आई वुड लव यू गाइज टू बी देयर. एंड आई वॉज सीकिंग फॉर एन थिंग अपॉर्चुनिटी लाइक दैट. तो आई वॉज लाइक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आपके इर्द गिर्द नहीं होता या लोग दावत देने के लिए नहीं होते, तो आपको खुद देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, या ऐसे लोगों से करना मतलब अटैच होना होता है. आई वुड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई सिस्टर हैव हर बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर लाइक अ मंथ, और ऑब्वियसली उसके सेकेंड ईयर के एग्जाम्स हैं, तो इट्स लाइक अ वेरी क्रूशल पीरियड ऑफ हर लाइफ. और उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी जाना है, एडमिशन टेस्ट और वो सब कुछ, मतलब इट्स अ रियली हेक्टिक टाइम इन लाइफ. लेकिन स्टिल शी इंजॉयज गोइंग टू दोरा कुरान सो मच, इवन दो शी वॉज नॉट प्लानिंग कि वो कही थी कि नहीं मैं जो हूँ पढ़ाई करनी ये करना है. लेकिन शी जस्ट वेंट टू वन क्लास एंड नाउ शी कैन नॉट, और वो हमसे सबसे पहले तैयार होती है. तो आई थिंक कि मतलब कि आई गेव हर एग्जाम्पल, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल कुड थिंक और अबिया यू work remotely and you are at home, so you have the time to give it to like to commit to that. Lekin my sister is also like going through the same time as some of you guys are, and she have her exams, lekin still she is so into it that she loves going for it every single day and she just don't want to miss a class. And also the more you will get into religion, it's not like कि आप बस दुनियावी कामों को बस छोड़ दो और कुछ भी नहीं है, ये नहीं है. लेकिन the more you realize कि this is also important and I need to know that, especially with Ramzan, you're like I am given this 1 month in this whole year, or मतलब I can pause my other things to give a little time to understanding the religion more. और आप हिम्मत करोगे खुद ही टाइम निकल आएगा और बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. तो if you have this urge, तो सी के even in university I think there are some societies, yeah, even there are some people who are really enthusiastic to teach other people, और especially with deen knowledge जब आपके पास होती है ना, तो आपका दिल चाहता है किसी को बात बताने का, किसी को शेयर करने का. हाँ, ये होता है कि लोगों में बहुत फ़र्क होता है किसी मतलब कि हर किसी के डिलीवरी स्टाइल में. कुछ लोग बहुत सख्त तरीके से बात बताते हैं और वो कभी कभी आप जो हैं वो उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और कुछ लोग बहुत नरमी से बताते हैं. तो मुझे लगता है ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको कोई ऐसा मिले जिससे आप उस तरह कनेक्ट कर सको और कर सको. लेकिन विद कुरान वो अल्लाह के अल्फाज है, उनमें किसी और का कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दैट्स अल्लाह के लफ्ज़. तो इस वजह से मुझे लगता है कि देयर इज़ लेस मार्जिन समवन वुड बी लाइक ओ मेरा ओपिनियन ये है या मेरा वो है, क्योंकि हम तो वही बात कर रहे हैं जो कुरान में है, और वही चीज़ वो तो कांस्टेंट है, जो भी है वो तो फैक्ट्स हैं, ठीक है. तो इस वजह से try to find people, और I hope when you will have this urge जैसे मेरे अंदर थी, तो अल्लाह ताला ने खुद ही रास्ते निकाल दिए. तो start with just wanting to do it, और इंशाल्लाह खुद ही रास्ते निकल आएंगे. Obviously इंटरनेट पे तो बेतहाशा
कंटेंट मौजूद है जिससे आप कुरान के बारे में जान सकते हो, बहुत ज़्यादा जान सकते हो. फिज़िकल क्लास का अलग मज़ा है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर नॉट मिसिंग आउट. और ऑनलाइन भी बहुत बेहतरीन कंटेंट मौजूद है. तो इफ़ यू कैन, मतलब कि इफ़ यू आर नॉट मी, तो यू कैन कमिट टू इट. और इवन नाउ दैट आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इट, तो आई थिंक कि अब मैं जो हूँ वो ऑनलाइन भी जो है वो इस चीज़ को सीख कर सकती हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव दिस क्यूरियोसिटी इन मी. You can also read Quran on your own. Again, online बेतहाशा sites, and there is this app Quran.com. उस पे कुरान का पूरा तर्जुमा है, हर लैंग्वेज में है, और एक लैंग्वेज में दो दो तीन तीन ट्रांसलेटर्स हैं कि आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो कि आपको किसकी ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है. आप उनकी ट्रांसलेशन में कुरान पढ़ सकते हो. तो इस वजह से if you don't have the means to buy a hard copy of Quran, there is an app and there are soft copies जो कि readable भी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ भी सकता है बंदा. ट्रांसलेशन भी इतनी ज़्यादा आपके पास चॉइसेस हैं कि आप किसी की भी सिलेक्ट कर सकते हो. इंग्लिश, उर्दू, इवन चाइनीज़, फ्रेंच, हर ज़ुबान में उस ऐप में जो है वो ट्रांसलेशन मौजूद है. तो इस वजह से आप खुद भी पढ़ सकते हो कुरान. यू कैन रीड इट योर सेल्फ ऑब्वियसली. और if you मतलब think of it as something that could increase your knowledge, as I said कि it's a thing that could increase your intellect about the religion, increase your knowledge about your religion, ताकि you can have a conversation. आपको अंदर से इतनी satisfaction मिलती है, आपको अच्छा feel होता है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप उसको एक इल्म हासिल करने का ज़रिया समझें. और जब आप कोई चीज़ प्योरली क्योंकि अब आके मुझे इस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बेशक वो कोई दुनियावी साइंसी चीज़ हो या बेशक कोई दीनी इल्म हो, कि मुझे इल्म हासिल करना. आई वॉन्ट टू गेट नॉलेज, आई वॉन्ट टू एजुकेट माई सेल्फ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉप एन एग्ज़ाम. जब आपका कोई वो नहीं ना होता कि मुझे ये चीज़ याद करके मेमोराइज करके एग्ज़ाम में लिखनी है. एंड व्हेन योर इंटेंशन फॉर रीडिंग समथिंग इज़ प्योरली टू गेट द नॉलेज एंड एजुकेशन, तब आपका अलग स्पिरिट होता है वो चीज़ करने का. तो जब आप कुरान प्योरली इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गेट द नॉलेज इन इट, और मैं इस्लाम के बारे में और जानना चाहती हूँ, तो आपका अलग स्पिरिट होगा और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. फिर आप अपने ऑब्वियसली रिलीजन को ज़्यादा जानना चाहते हैं. अब मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर रिलीजन इज़ कुरान. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नाउ आई एम गोइंग थ्रू द पॉइंट्स आई हैव. पहले मैं खुद बोल रही थी, नाउ आई एम गोइंग थ्रू द पॉइंट्स दैट आई रोट टू प्रिपेयर द पॉडकास्ट. सो इट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इस्लाम एंड योर एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. आप कभी कभी कहते हो कि ओ मैं क्यों आई हूँ, या फिर मेरा क्या है, या समटाइम्स यू जस्ट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस, या फिर यू आर लाइक कि अब दुनिया में क्या रह गया है, मेरा क्या मकसद है. कभी कभी आपके पास कुछ होता नहीं है, कभी कभी यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो आपकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट नहीं कोई आ रही होती. तो कुरान में इतनी ज़्यादा जो है वो पीस है और इतना ज़्यादा कंफर्ट है कि आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ओ मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ. और फिर आपको, और उसमें जन्नत का इतना ज़्यादा जिक्र हुआ हुआ है और अल्लाह ताला का रिवॉर्ड का इतना ज़्यादा जिक्र हुआ हुआ है. तो देन यू अर्ज कि आप वो काम करो जिससे आपको अल्लाह ताला का रिवॉर्ड मिले. जब उसमें जन्नत का जिक्र होता है, आपका दिल चाहता है कि आप ऐसे इंसान बनो जो वहाँ जाए और वो चीज़ें देख सके और वो चीज़ों में रह सके. तो आप लार्जर देन लाइफ, बिगर देन दिस वर्ल्ड, आप एक चीज़ देखते हो और फिर आपको यू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ मोर, यू लुक फॉरवर्ड टू लाइफ आफ्टर डेथ, एंड देन द लाइफ आफ्टर डेथ मोर. कि एक तो आपको कुरान पढ़ने से, जैसे मैंने मुझे लगता है कि पिछली पॉडकास्ट में भी यही कहा था और मैंने पूरी पॉडकास्ट बनाई थी कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ. द बेस्ट वे और द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे, और ये मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था, to overcome the fear of death is by being closer to your religion. जब आप अपने दीन से क्लोज होंगे और आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, आप नमाज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, the more you will realize कि there is so much after death and you want to look forward to that, you want to experience that, and that would make the idea of death easier to you. कि आप कहोगे कि ओ इस दुनिया में मैंने ये करना है और उसके बाद there is so much more for me. अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ का रिवॉर्ड देना है, मैंने जन्नत में जाना है, मैंने जन्नत में ये देखना है, मुझे ये करना है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं. स्पेशली विद डेथ, हमें ज़्यादा डेथ में, मुझे पर्सनली तभी ज़्यादा मौत का डर लगता था जब मैं दुनिया में गुम थी, दुनियावी कामों में याद ही नहीं करती थी
कि मरना भी है। एक दिन याद किया तो ऑब्वियसली डर लगना ही है, या फिर कोई करीबी चला गया उसके बारे में सोच के डर लगता था कि ओ मेरे पास भी ये टाइम, मेरे पे भी ये टाइम आना है। तो द मोर आई नो अबाउट रिलीजन, द मोर आई कनेक्ट मोर टू रिलीजन, द मोर डेथ इज ईजियर फॉर मी। और आई सेड इट इन द पॉडकास्ट टू कि मैं एक मौलाना तारिक जमील का खिताब था, एंड ही सेड कि अल्लाह ताला से करीब हो जाओ, अल्लाह ताला को खुश करो, मौत से ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं है। तो दैट मेक्स, और नाउ आई डोंट रियली fear death that much, और इस वजह से मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग राइट इन माई लाइफ। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज लाइक really interesting, or this is something that I experience and want you all, everyone who is listening to it, I want you guys to experience this as well. कुरान जब आप पढ़ते हो ना, you really get goosebumps, क्योंकि you realize कि you are literally reading something directly Allah have said. अल्लाह ताला डायरेक्टली, अल्लाह ताला और रसूल की आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ प्रिविलेज कि आप वो चीज़ सुन रहे हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ कहानी, मतलब कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आप कोई वाकया पढ़ रहे हो, आप किसी बुक में पढ़ रहे हो, या चलो आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हो, या फिर आपने चलो एक दो आयत जो हैं वो कहीं पे पढ़ ली, लेकिन आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। जब आप कुरान में उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो तो वो एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। यू फील रियली प्रिविलेज कि आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, हम इतने अरसे से ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें मोस्टली ये होता है कि हम अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जब हम कोई हम हदीस पढ़ते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो कि कोट की होती है कहीं पे, और डायरेक्टली हम कुरान से नहीं पढ़ रहे, तो वो फीलिंग हो ही नहीं सकती जब आप कुरान में सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़ के जब वो चीज़ पढ़ रहे हो। तो मैं अब इतने जो है वो गौर से और इस तरह पूरे फ्लो में पढ़ रही हूँ, एंड आई एन्जॉय रीडिंग। आई हैव रेड बुक्स, और आई कीप रीडिंग बुक्स दैट आर रिटन बाय ह्यूमन। जब आप कुरान पढ़ते हो, यू रियलाइज कि देयर इज़ नो वे अ मैन, अ ह्यूमन बीइंग कुड राइट समथिंग लाइक दैट। मतलब कोई इंसान लिख ही नहीं सकता। स्पेशली मैं कुरान भी पढ़ रही हूँ दिन के टाइम, और मैं रात के टाइम सोने से पहले द बुक आई एम रीडिंग दैट इज स्पिरिचुअल बुक्स द सीक्रेट ऑफ डिवाइन लव, और मतलब रिटन बाय एन ऑथर, और मैं वो भी बुक पढ़ रही हूँ। जो इम्पैक्ट और जो कनेक्शन मुझे कुरान पढ़ के मिल रहा है, वो मुझे एक ह्यूमन रिटन बुक अबाउट स्पिरिचुअलिटी से नहीं मिल रहा। और आई एम because I'm reading the both of the things at the same time, I can tell that Quran is not something that a human can write, and Quran is a book about spirituality that completes you, और that makes me realize मैं दुनिया जहाँ की जितनी भी spirituality के बारे में बुक्स पढ़ लूँगी, obviously लोगों ने बहुत खूबसूरत किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी मिली हैं, लेकिन जो सुकून, कंफर्ट और जो सवालों के जवाब कुरान आपके दे सकता है, वो कोई ह्यूमन रिटन बुक नहीं दे सकती। और यू कैन, मतलब कि since I am doing it, I am reading a human written book, and the book that is sent to us by Allah, so I can see the I can do the clear comparison, and you can do it as well. लेकिन जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, when you will get into it, once you will be like, आप 2-3 सूरा पढ़ लेंगे, तो you will realize कि how this book is not something a man could ever write, and how this book is the truth, and मतलब it is the book you want to believe in. और उसमें जो भी सूरत है, कभी कभी कोई सूरत या कोई हुक्म है, कोई फरमान है, वो हमने जो है वो कुरान में नहीं पढ़ा हुआ, हमने अपनी इस्लामियत की बुक में पढ़ा हुआ है, हमें हमारे पेरेंट्स या कारी साहब, या हमने फेसबुक पे कहीं पे भी पढ़ा, हमें व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया है। तो बहुत से ऐसे हुक्म हैं जो हम पढ़ते हैं, और हमने मतलब कि कुरान से पहले भी पढ़े हुए हैं, हमें उस चीज़ का ना कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, तो हम उस तरह उस चीज़ पे इताअत नहीं कर सकते, हम उस तरह उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप वो चीज़ कुरान में पढ़ते हो, आप उससे पहले का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो, आप उससे बाद का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हो, आप वो हुक्म पढ़ते हो, आपका दिल चाहता है वो चीज़ मानने का, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ मानते हो। देयर आर, मतलब कि ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ते हो और आप क्वेश्चन करते हो कि वो ऐसा क्यों है, या मुझे ऐसा क्यों करना पड़ेगा। व्हेन यू रीड दैट इन कुरान, जब आप वो फ्लो में एक चीज़ पढ़ रहे हो, और आप उससे पहले की भी सारी आयत पढ़ी, उसके बाद की भी सारी आयत पढ़ी, तो देन यू रियलाइज कि दिस इज़ वाई ये हुक्म किया गया है, एंड आई वॉन्ट टू फॉलो दैट। मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ, मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ जो कुरान में लिखी है। दिस इज़, मतलब दैट्स अ रियली पावरफुल थिंग दैट कुरान हैव डन टू मी, कि आप
बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कुरान में पढ़ी हैं, लेकिन मुझे उससे पहले भी पता थी, लेकिन जो इम्पैक्ट वो कुरान में पढ़ के हुआ है, जब मैं वो कॉन्टेक्स्ट, मुझे उसका सारा पता है और सब कुछ पता है, और वो मैंने फिर चीज़ें अपनाना शुरू की हैं, वो शायद मैंने उस पहले इतनी सीरियसली नहीं ली थी. तो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, कुरान इज़ द बुक फॉर यू. कुरान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ दुआस, और वो ऐसी दुआएं हैं जो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, अपने मसनून दुआओं की किताब में होंगी, लेकिन व्हेन यू रीड इट इन कुरान विद कॉन्टेक्स्ट, तो उन दुआओं का अलग इम्पैक्ट होता है. जब आप जानते हो कि ये दुआ किस सूरत में अल्लाह ताला ने ये जो है वो आयत उतारी थी, तो वो उस चीज़ का इम्पैक्ट अलग होता है, आप उससे कनेक्ट ज़्यादा करते हो और आपका दिल चाहता है कि उस दुआ को अपनी दुआओं में इंक्लूड करने का. मैंने बहुत सी हाईलाइट की हुई, लेकिन सिंस आई कैन नॉट ब्रिंग द हार्ड कॉपी इस एपिसोड में, इंशाल्लाह आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट एपिसोड. और आज मैं दोबारा कुरान में थी, तो देयर वाज दिस लाइक आयत जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई रोट इट डाउन. इट्स इन सूरत अर-राद, आयत नंबर 28, or the translation of it is कि those who believe and whose heart find comfort in the remembrance of Allah, surely in the remembrance of Allah do hearts find comfort. और मुझे ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगी, और इस वजह से मैंने आज बार बार कंफर्ट का वर्ड भी यूज़ किया, क्योंकि मैंने ये आयत पढ़ी हुई थी और आई रियली रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद इट. कि आप जब आप इस चीज़ पे यकीन करते हो और आप जो है वो अल्लाह का जिक्र करते हो और आपके दिल को इस चीज़ से सुकून मिलता है, तो यकीनन यही चीज़ है जिससे अल्लाह की ही याद है जिससे आपके दिलों को सुकून मिल सकता है. एंड दिस थिंग इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, कि आपको बहुत सुकून मिलता है, एंड यू जस्ट सी मोर देन योर दुनियावी ड्रीम्स एंड मोर देन दैट. और yeah, that's it for this episode. I hope you liked it and I hope you enjoyed it. Stay tuned for the next episode as well. मुझे लगता है कि 2 और एपिसोड्स होंगी, क्योंकि कैलेंडर में आ रहा था कि ईद वुड बी ऑन वेडनेसडे. तो अगर वेडनेसडे से अगले दिन हुई, थर्सडे हुई, तो फिर तो आई थिंक के 3 और एपिसोड्स हो जाएंगी, विच इज़ रियली गुड. लेकिन प्रॉबेबली शायद 2 एपिसोड्स और हों, और इंशाल्लाह उस पर मिलेंगे. और आई हैव डिसाइडेड द टॉपिक्स ऑफ इट एज वेल, और वो भी बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं. और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, और उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है. इवन इन द बुक द सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव, उसमें मैंने उस चीज़ के बारे में बहुत पढ़ा है, और कुरान में भी एक पूरा वाक़या है उस चीज़ के बारे में, तो उसकी भी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी. तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. मैं फिर सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव इज़ ऑल्सो रियली नाइस बुक, और उसकी भी कुछ कोट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी. तो नेक्स्ट एपिसोड में मेक श्योर यू आर ट्यूनिंग इन फॉर दैट, और इंशाल्लाह इट वुड बी रियली नाइस. और आई होप के the next rosas are really easy for you, and I hope ke me and you and all the brown girls are not, all the girls do not get in the Sehri Iftari crisis and we don't get a burnout, because we have to pray and we have to make the best out of this month. So see you next week, next Wednesday, and Allah Hafiz.